Hello. Hello, Vishal sir. Yeah, Ranjana, please kindly start. Yeah. Uh, Hello, good afternoon, everyone. It gives me an immense pleasure to welcome you all on this platform for BSUSC interview tips and skills. So today we have another dynamic personality, Dr. Twinkle Keshari, assistant professor in Veer Kuvar Singh University, Agra. I think perhaps she is the first lady speaker on our group. She is doctorate in chemistry from University of Allahabad, and she was also an CSIR JRF fellow with All India rank of 42 in chemical sciences. She has faced different interview of different commissions. She has published many international and national publications in reputed journals, and we hope this session is beneficial to all of our group members. So in the last 15 minutes, we'll have the doubt session. So I request all the group members to please clear their doubts. And on the behalf of our this group, I thank you, Dr. Keshri, for your valuable time out to take it out of your busy schedule. So over to you, Dr. Keshri. Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I think I am audible. Yes, you are audible. Yes. I'm going to tell you what was the actually schedule of my interview, and now in your this vacancy of 2020, I'm seeing that there are some differences like total number, it is 115 for you all, in which you all will be entering the interview. But we were having only 100 marks, overall 100 marks of entrance, we can say, in which 85 marks was for academics and 50 numbers was for interview. So this time there is more value for the students, the applicants who have done their PhD, because this time it is 30 marks given for the PhD aspirants, and in my time it was only 10 marks. So I have not completed my PhD at that time. I just entered only through the net qualification at JRF. So that was the plus time for our time in 2014 batch. That like me, there are many doing the job who are only qualified by their net. Okay, many of us were not having at that time PhD. So this time, but I'm seeing the vacancies. They are according to UGC regulation. This time it is given 30 marks for the PhD aspirants. Also this time, I think 10 marks is there for teaching experience. But last time there was no marks for teaching experience, no marks for JRF qualification or net qualification. Just appeared in net or JRF, we were only having eligibility to fill the form. ओके और इंटरव्यू में क्या है, एक तो बेसिकली बहुत सारे पैनल्स थे हमारे टाइम में. 1 मंथ तक इंटरव्यू चला था, मतलब क्योंकि 200-250 सीट्स थी हमारे यहाँ केमिस्ट्री में और रिटन एग्जाम नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग इंटू 10 कर लीजिए आप. एक सीट पे 10 लोगों को कम से कम बुलाया गया था एट दैट टाइम, और पर्टिकुलर 10 रोल नंबर या 15 रोल नंबर के हिसाब से कुछ दिनों में ऐसे 1 मंथ तक चला था इंटरव्यू. मेरा अगस्त में पड़ा था, अगस्त 2016. और पैनल भी डिफरेंट, अलग अलग पैनल्स बैठते हैं, कोई पैनल रिपीट नहीं हुआ है. ठीक है, वो मुझे अब मालूम चला. अब मैं जब इस जॉब में हूँ तो ऐसे वो सारे टीचर से भी मैं मिली हूँ जो ये सब इंटरव्यू में बैठे हुए थे. ठीक है, अब उनसे मुलाकात होती है. वो
बिहार के भी बिहार के भी टीचर्स रहते हैं, बाहर के भी टीचर्स रहते हैं पैनल में जो बैठते हैं, और वो आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे, यू हैव टू आंसर इन दैट लैंग्वेज. इफ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव टू से, you have to give your introduction, you have to give your interview, everything in English. तो लैंग्वेज मोड तो सामने वाला जैसा करेगा वैसा आपको बोलना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इंटरव्यू में, वो यही है कि आप क्या करते हैं. ठीक है. तो दोज हु आर डूइंग पीएचडी और हैव डन पीएचडी, so they will only say that कि हाँ मैं पीएचडी कर रही हूँ या मैंने पीएचडी कर लिया है. तो अगर पीएचडी से आप अपना शुरुआत करते हैं इंटरव्यू का, अगर वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप पीएचडी से शुरुआत करते हैं, तो दे विल डायरेक्टली पुट आउट द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डन इन योर पीएचडी, क्या किया है आपने पीएचडी में. तो केमिस्ट्री से अगर मैं मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं स्पेसिफिकली आपको केमिस्ट्री के बारे में ही बता पाऊंगी. बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फील्ड है, जो भी रिसर्च वर्क है, उस बेसिस पे आप बताओगे कि हमारा ये काम है, तो उसमें से ही थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि आप करके बताइए, या फिर रिएक्शन लिखिए, या फिर जो भी है उससे रिलेटेड, या आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करोगे वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपके बीएससी एमएससी पार्ट में रहता है. क्योंकि देखिए, आपके पीएचडी का काम, आपके रिसर्च का काम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. इवन इवन जो आपके यहाँ बैठते हैं उन्हें भी नहीं पता कि एक्चुअली आपने क्या काम किया है. ठीक है. तो वो उसमें वर्ड्स ढूंढते हैं कि अगर जो आपने काम किया है या जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी या कौन से टर्म्स आपके बेसिक नॉलेज पीजी यूजी उससे रिलेटेड है. ठीक है. जैसे कि मैंने सिंपल एक रिएक्शन लिखा जो मेरा काम था, जो मेरा स्ट्रीम था. तो मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ. उसमें मैंने चार्ज बनाया हुआ था, प्लस नेगेटिव. तो पूछते हैं कि व्हाट इज दिस चार्ज. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इन ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते हैं कि कूलम होता है यूनिट चार्ज का, या उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होता है. तो वो मेरे रिसर्च में घुस के तो नहीं ना पूछना है. वो मुझसे बस पूछे कि मैंने क्या किया है, और मैंने वो रिएक्शन लिखा, उसका प्रोसेस बता दिया कि हम इसी तरीके से बनाए हैं और ये यूज होता है इसका. तो बाकी उन्होंने जो उसमें देखा उससे रिलेटेड वो बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे. ठीक है. हमारे थीसिस का टाइटल क्या है, टाइटल पूछा, टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे. ठीक है. तो इस तरीके से काफी देर तक पीएचडी से ही सारे क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि हम यूजी पीजी में पढ़ते हैं उन्होंने पूछा. दूसरी चीज वो कर सकते हैं, वो आपको पढ़ने, मेरे साथ तो ऐसा किया था, और भी लोगों, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने डिस्कस किया था, तो उनके साथ भी हुआ था. वो आपको बोलेंगे कि कोई चैप्टर आप पढ़ा के दिखाइए. बहुत बेसिक है, हर जगह होता है. अगर टीचिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो मैंने जो 2-3 जगह दिया है इंटरव्यू, तो हर ही जगह ऐसा बोला गया है कि आप पढ़ा के दिखाइए, हमें टीच करिए कोई टॉपिक. जनरली तो बोल देते हैं आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक टीच करिए. मतलब अभी तक तो हमसे नहीं पूछा गया है कि आप यही टॉपिक बताइए या फिर यही पर्टिकुलर टॉपिक को आपको पढ़ाना है. ऐसा कुछ नहीं किया गया है और जनरली नहीं करते हैं. वो आपके चॉइस पे छोड़ देंगे कि आप कोई टॉपिक हमें पढ़ाइए. तो अब जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक से जैसे बच्चे ग्रॉस क्वेश्चन करते हैं वैसे सर वो आपसे ग्रॉस क्वेश्चन करेंगे सारे जितने बन सकते हैं उसमें, या उसमें जो भी इम्पोर्टेंट हो. तो अगर आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करके जा रहे हो कि हम इंटरव्यू में अगर हमको ऐसा मौका मिलता है कि हमें बोलते हैं कि चलिए आप पढ़ा के दिखाइए, तो वो प्रॉपर उस चैप्टर को प्रिपेयर करके जाइए. उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हो, जितने ग्रॉस क्वेश्चन हो सकते हो, और सारे ग्रॉस क्वेश्चन खुद से क्लियर करके ही जाइए, ताकि अगर उसमें बनता हो तो हम उसको बता सकें. दूसरी चीज ये सब तो हो गया जो बच्चे, वैसे तो सब पीएचडी करने वाले ही आई थिंक क्वालिफाई हो पाएंगे. बाकी जो नहीं कर रहे हैं या जो कहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हो या अदर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे हो, तो वो उनसे तो हमें लगता है कि अगर वो टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड पूछेगा आप क्या कर रहे हैं. हम पढ़ा रहे हैं सर. कहाँ पढ़ा रहे हैं. ठीक है. क्या आप पढ़ा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है. तो हो सकता है वो वहां से शुरुआत करें. अगर आप कहीं पहले से पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में या किसी और जगह पे गवर्नमेंट में, तो इस तरीके से वो मतलब आपको ही आप जो बताओगे उसी से वे क्वेश्चन निकालने वाले हैं. तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे जवाब भी दे रहे हो तो किस तरीके से दे रहे हो. ऐसा जवाब दो कि उस जवाब में भी एक क्वेश्चन छुपा हो और सामने वाला उससे हमें क्वेश्चन पॉइंट आउट करे. तो जो पूछने वाला है, जो इंटरव्यूअर है, उनका
उनके क्वेश्चन को मॉड्यूलेट हम लोग खुद कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, वैसे 2-4 इंटरव्यू हमने दिया अभी तक। तो ऐसे ही होता है, जो आप जहां से स्टार्ट करोगे वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके से इंटरव्यू होता है यहाँ पे। बाकी आप लोग का जो फील्ड हो, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो, उसी तरीके से पूछा जाएगा। ड्रेसिंग सेंस की बात करें अगर, तो क्योंकि देखिए ये मैनेजमेंट कोर्स तो कोई है नहीं, जैसे हम लोग स्पेशली देखते हैं मैनेजमेंट कोर्स या इंजीनियरिंग के लिए लोग स्पेशली सूट बूट इस तरीके से, गर्ल हो चाहे बॉय हो, पहन के जाते हैं। अब यहाँ तो हम लोग का क्योंकि टीचिंग सेक्टर है, तो जो इंडियन ड्रेस है, लड़कियां हैं तो सूट या साड़ी प्रिफरेबल है उनके लिए, और लड़के हैं तो उनके लिए शर्ट पैंट, विच इज द बेस्ट आई थिंक। तो यही है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है अभी तक। यस, इट्स ओके, ओके, डन। रंजना, you can ask any question if you want. Anyone? Yes. Hello. I request all the group members, if there is any doubt, please clear the doubt with ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Hello. Yes, 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 please, please. ओके मैम, वहाँ जो क्लास जो भी पढ़ाने के लिए बोलेंगे वो हम लोग को स्लाइड्स में प्रेजेंट करना होगा या फिर ऐसे ही अपने मन से बोलना है? हाँ, और वो इंग्लिश में या हिंदी में या किस लैंग्वेज में, मतलब उसके लिए एक ऐसा है कि आपको इंग्लिश ही में मतलब वो देना है आपको लेक्चर, या फिर हिंदी में भी दे सकते हैं, और स्लाइड्स के साथ प्रेजेंटेशन टाइप देना है, या फिर इसी तरह से बोल देना है कुछ भी? देखिए हम तो गए थे तो वहाँ बोर्ड था, ठीक है। ओके। जनरली बोर्ड रहता है, या तो ब्लैक बोर्ड रहेगा, और या फिर जो आपका व्हाइट बोर्ड रहता है, मार्कर रहता है, इस तरीके की चीजें वहाँ अवेलेबल होंगी। मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि स्लाइड से आपको पढ़ाना हो, ऐसा तो नहीं ओके। है, क्योंकि वैसे भी बिहार इज नॉट दैट मच डेवलप्ड कि यहाँ पे आप स्लाइड से पढ़ाओ, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड ओके। या व्हाइट बोर्ड वहाँ रहता है जिससे कि आपको पढ़ाना है। लैंग्वेज की बात करें तो वो मैंने आपको बताया कि सामने वाला कैसा बोलता है वो आपको देखना है, ठीक है। ओके। ऐसा कोई नेसेसिटी तो है नहीं कि आपको इंग्लिश ही बोलना है या हिंदी ही बोलना है। सामने आप देखिए कि अगर दोनों ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज बोथ। अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि हम भी इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे भी हाँ हाँ, ठीक है। अगर आप लोग का आर्ट्स सब्जेक्ट है तो आर्ट्स तो जनरली हिंदी में ही होता है। साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस में तो मेनली टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश है, अदरवाइज वो तो हो जाता है आसानी से। तो जैसा सब्जेक्ट हो जिसका, उसके अकॉर्डिंग जैसा वो पूछते हैं वैसे ही आप लैंग्वेज यूज करोगे। यस। ओके। ओके मैम। तो मैम, यस। हाँ मैम, मतलब कि जैसे आप इंटरव्यू जब देते हो तो उस बीच में हमको लगता है कि आइडिया हो जाता है कि पॉजिटिव वेव जनरेट हो जाता होगा कि हाँ भाई हमारा हो सकता है। मैं कि इन्फ्लुएंस उनके इससे पता चल जाता है ना, उनके बोलने से, वो कि जब आप रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से जैसे आप है ना, आप क्वालिफाई कर गए तो आपको तो उसी वक्त आइडिया हो गया होगा एक तरह का कि हाँ नहीं मैं सही किया। देखिए कुछ आपका एकेडमिक्स भी मैटर करता है। मेरे साथ क्या था, मेरा 4 फर्स्ट क्लास था। मैंने जो मेरे को एकेडमिक्स में फुल मार्क्स मिले हैं टोटल, जो 10th 12th यूजी पीजी के जो मार्क्स होते हैं ना, कि अगर आपका 7 अब इस बार का मुझे इतना याद नहीं है कि क्या है इसका जो दिया रहता है, लेकिन हमारे टाइम में मिलेगा ऐसे करके। अगर आप यूजी में 75 अबव है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। जिस तरीके की नहीं था, ठीक है, वो पूरा था। बस मेरे यहाँ मेरे टाइम में एक कमी थी कि वो 10 मार्क्स हमें पीएचडी के नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मेरी पीएचडी उसमें नहीं हुई थी, मैं कर रही थी उस समय। तो इससे भी थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि आप अपना एकेडमिक्स, और अगर पीएचडी हो, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि देखिए इंटरव्यू तो केवल 15 नंबर का है, ठीक है। और ये बहुत ही किस्मत खराब होगा किसी का कि आपका 1-2 नंबर उसमें आए तो, अदरवाइज थोड़ा ठीक या बहुत अच्छा भी जाता है तो 8, 10 या 12 तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि 12 तक भी मिले हैं हमारे यहाँ। कहने को तो हमारे यहाँ 1 नंबर भी मिला है इंटरव्यू में। और सबसे बड़ी बात, ऐसे भी लोग थे कि जिनका 1 नंबर मिला है उनका भी हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू 15 ही नंबर का है, ठीक है। मेन जो इसका मेजर फैक्टर है ना, वो आपका वो ले लेगा
एकेडमिक्स। और इंटरव्यू भी आपका, हाँ, जैसा आप दे रहे हो, अगर पॉजिटिव रिजल्ट जा रहा है तो उसमें तो समझ में आ ही जाएगा कि हमको कम से कम 10 तो देंगे ही देंगे, या 12 तो देंगे ही देंगे, ठीक है। अब इतना ही कोई कर पाएगा कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए, तभी शायद वो 1-2 तक जाएगा। अदरवाइज तो आई थिंक वो सबके लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वहां होती है जहाँ इंटरव्यू के लिए ज्यादा नंबर, 50 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, 30 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, थोड़ा वहाँ हेरा फेरी होने का भी डर होता है। बट यहाँ एक चीज अच्छा है कि क्योंकि 15 नंबर का इंटरव्यू है तो कोई हेरा फेरी का कुछ चांस नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो जिनका पीएचडी अभी करंट में चल रहा है या हो गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं चूंकि एज इसमें बहुत दिया गया है, तो ऐसे हैं कि जिनका पीएचडी बहुत पहले हो गया है। जैसे मेरा पीएचडी 2007 में पूरा हो गया है, तो क्या अभी आप क्या कर रहे होंगे? कुछ तो कर रहे होंगे अभी आप। वित्त रहित कॉलेज का टीचर हूँ, जिसके स्थिति सबको पता है कि वित्त रहित में क्या होता है। तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बस इसी का इंटरव्यू है, और नेट मैंने 16 में क्वालिफाई की है, तो वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से की है मैंने। तो यही अगर सेल्फ आपसे स्टडी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो तो आप यही बताओगे ना कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी। पढ़ा रही हूँ, तो वित्त रहित कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, जो भी है। तो बाकी अभी हम ये लॉकडाउन के पीरियड में बेसिक कंप्यूटर सीख रही हूँ, इसलिए कि आगे जाके बिना कंप्यूटर जाने उस पर काम नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए मैं अभी बेसिक कंप्यूटर सीख रही हूँ और उसको थोड़ा जोर दे रही हूँ। तो क्या मैं ये बता सकती हूँ कि मैं अभी कंप्यूटर सीख रही हूँ आगे के एजुकेशन को सरल बनाने के लिए? क्या मेरा आंसर ऐसा हो सकता है? हमें नहीं लगता, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है वैसे? होम साइंस। होम साइंस। तो क्योंकि आप यहाँ होम साइंस के लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ठीक है, वो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गया जो आप कंप्यूटर कर रहे हो, बट हमें लगता है कि आपको यही बताना पड़ेगा कि आप अभी हम पढ़ा रहे थे या पढ़ा पढ़ा रहे रही हैं। हूँ। बिल्कुल, जो आपका उसके बाद एकेडमिक से रिलेटेड है वो आप बताओगे। हाँ, उसके बाद आप भले कह सकते हो कि सर इन एक्स्ट्रा आई एम डूइंग प्रिपरेशन इन कंप्यूटर, आई एम ऑल्सो लर्निंग कंप्यूटर, यू कैन से ऑल दैट। लेकिन पहले जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करो, अब ऐसे तो कहो कि भाई हम भी केमिस्ट्री पढ़े हैं लेकिन हम कुछ और सीख रहे हैं, काम कंप्यूटर ही सीख रहे हैं, कोई और चीज एक्स्ट्रा करिकुलर मेरा एक्टिविटीज में सीख रहे हैं। क्वेश्चन ये कि जो 2007 में मेरा पीएचडी पूरा हो गया है, तो वो कोई बात उसको नहीं ना, तो वो पीछा हो गया। अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में आप पढ़ा रहे हो, तो अब आप ये तो बताओगे कि सर मैंने पीएचडी इसी ईयर में किया था। वो तो खुद पूछेंगे कि आपसे कि आपने पीएचडी कब किया, या अब इतना देर हो गया पीएचडी से अब तक में इतना गैप हो गया, तो अभी क्या कर रहे हो आप? तो आप बोलोगे कि हाँ मैं सर पढ़ा रही हूँ, और फर्दर मैं टीचिंग को एक्स्ट्रा, अरे क्या कहते हैं उसको, टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए। हाँ कंप्यूटर का मैं क्लास भी कर रही हूँ। तो लेकिन पूछेंगे वो आपको सब्जेक्ट का ही, वो कंप्यूटर थ्योरी से नहीं जाएंगे। दैट इज योर, वो आपका अच्छा एक प्लस पॉइंट हो गया, बट ही विल आस्क ओनली अबाउट योर सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट से तो आप सब्जेक्ट पूछेंगे पर क्या तो मैं पढ़ा रही तैयार हो। हो ही रही हूँ, लेकिन अपने हाँ सब्जेक्ट पर मैं बिल्कुल। अपने तरीके से तैयार हो रही हूँ। ओके, हाँ थैंक यू। तो सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए आप, स्पेशली यूजी पीजी, हाँ इन सब चीजों का। ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी के तो प्लीज आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। हेलो हेलो। हाँ यस। हाँ मैम, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, पूछेंगे इंटरव्यूअर, तो उसमें जो अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं रिसर्च या पढ़ा रहे हैं उसका, और जो सिलेबस है उस कितने कितने % का वेटेज होता है लगभग? मतलब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। मैम ये पूछा, अभी अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं एट प्रेजेंट या पढ़ा रहे हैं, और उससे भी जैसा बताया उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ क्वेश्चन हमारे सिलेबस से पूछ सकते हैं जिस सिलेबस में अप्लाई किया। देखिए सिलेबस से एकदम सिलेबस से तभी जाएंगे जैसे होता है कुछ लोग ना कि पीएचडी सर मेरी 2 साल पहले भी पूरी हुई है, अभी हम बस ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं। एक ऐसा भी तो जवाब हो सकता है किसी का कि सर हमने पीएचडी हम कर चुके हैं और अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जनरली वो आपके सिलेबस पर जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आपका क्या टॉपिक अच्छा है या कौन सा आपका ग्राउंड सब्जेक्ट में मजबूत है, तो आप बताओगे कि सब्जेक्ट ये हमारा बहुत स्ट्रांग है,
या इसमें हमें इंटरेस्ट है, तो वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे। हेलो हेलो, और कोई क्वेश्चन है किसी के? मैडम जी, मैडम नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है। जी। मैम मैम थीसिस या फिर जो कंपाइल पुस्तक है उसको ले जा सकते हैं क्या बोर्ड के समक्ष? पीएचडी हो चुकी है आपकी? हाँ, पीएचडी हो चुकी है और मेरी 2 पुस्तकें हैं, कंपाइल की है मैंने। तो क्या? हाँ, वो आप इंटरव्यू में ले जा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, मेरा हिंदी विषय है मैम। जी, अच्छा, ठीक है। पढ़ा रहे हैं अभी आप? हाँ, मैं 10+2 स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, ठीक है। जी मैम। आप 10+2 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं 10+2 का आपसे पूछे, वो आपको यूजी पीजी का ही लगभग पूछेगा। जी जी। तो अपना, हाँ, तो अपना यूजी पीजी के ही सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखेगा। जी मैम। और कोई क्वेश्चन है? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम डॉक्टर कविता कुमारी मैम। मैंने होम साइंस से पीएचडी किया हुआ है 2012 में पटना यूनिवर्सिटी से मैम। अभी मैम मैं बीएड कॉलेज में पढ़ा रही हूँ मैम। तो मुझे ये जानना है कि मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने आपकी 2 आवाज किताबें क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम? हाँ, अभी 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 बहुत डिस्टर्बेंस है एक्चुअली। आप पीछे का, कविता जी, आप पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा कम करिए, पीछे कुछ नॉइज आ रहा है। मेरे बैकग्राउंड में तो कोई आवाज हो नहीं रही है। तो किसी का माइक ऑन होगा एक्स्ट्रा, आई थिंक। हाँ, कविता जी, हेलो। हाँ, यस मैम। जी बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने होम साइंस से मैम पीएचडी किया है और मैंने 2 किताबें भी लिखी है, जो रिसर्च वर्क किया था उसी से रिलेटेड मैंने 2 किताबें लिखी थी मैम। अभी फिलहाल मैं बीएड कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो मैम मुझे ये जानना है कि क्या मैं अपनी जो किताबें मैंने लिखी है, क्या वो इंटरव्यू में मैं लेके जा सकती हूँ? आप इंटरव्यू में किताबें जो लिखी हैं, देखिए आप वहाँ लेके तो जरूर जाइए जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। अगर उसको उसकी जरूरत होगी कि वो आपको इंटरव्यू पैनल के अंदर जाने दे तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो कंपाइल करके चेक करके चीजों को वहीं पे रख देंगे, ये है। लेकिन अगर थीसिस एंड ऑल की बात है तो ये मैं कहूंगी कि हाँ भाई, थीसिस लेके जाना चाहिए। कई बार होता है कि वहाँ जो पैनल बैठते हैं वो आपका थीसिस मांग लेते हैं आपसे। तो थीसिस मतलब आप लेके भले जाइए उसको, बट जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां से आपको बोलेगा कि जो चीज अगर ले जाने लायक अगर उसको लगती है तो वो जरूर बोलेगा कि उसको आप ले जाइए। अदरवाइज जो चीज नहीं ले जाना है वो वहीं पे रह जाती है, फिर आप इंटरव्यू देख के आते हो, अपना सामान लेके चले जाते हो। अच्छा, तो फिर वो मुझे वापस दे दी जाएगी मैम इंटरव्यू के बाद? यस, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने तो पीएचडी होम साइंस से किया है मैम। अभी फिलहाल मैं बीएड में पढ़ा रही हूँ, तो क्वेश्चन का एरिया जो है बीएड भी रहेगा और पीएचडी यानी होम साइंस भी रहेगा मैम? आप होम साइंस से ही अप्लाई की है ना? जी हाँ मैम, मैंने होम साइंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मैंने बीएड एमएड किया हुआ है और मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ मैं, ट्रेनिंग कॉलेज में अभी। लेकिन सब्जेक्ट से ही पूछेंगे वो आपको। सब्जेक्ट से ही पूछेंगे? हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। अच्छा, वहाँ आपके सब्जेक्ट के तो एक्सपर्ट बैठे रहेंगे ना। जी जी, मेन बात ये है। तो उनका सवाल ये हो सकता है कि होम साइंस छोड़कर मैं बीएड कॉलेज में क्यों हूँ? अभी ये तो मतलब वही है कि जॉब सबको चाहिए, तो आपको जहाँ लगी वहाँ हो। जी बिल्कुल, जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ चाहिए होगा मैम, ये तो कह सकती हूँ ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, बिहार का जीके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मैम कि ये लोग हाँ, अभी बोलिए। बहुत
हाँ, ये लोग अभी जो अपॉइंटमेंट जो कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत रिसर्च तो कर रहे हैं हमारे बिहार से। अभी आप लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, आप बताइए कि वहाँ का रिसर्च का स्कोप कैसा है? आप लोग कर रही होंगी शायद। बहुत खराब है। बहुत खराब है। आर्ट्स के सब्जेक्ट, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट वाले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स में तो आई डोंट थिंक इतना लैब वर्क या बेंच वर्क चाहिए, क्योंकि किताबों की कमी नहीं है, लाइब्रेरी यहाँ की बहुत रिच है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो। लेकिन साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे लैब स्टैब्लिश बहुत नहीं है, तो थोड़ा सा लैब वर्क करने में प्रॉब्लम है। आर्ट्स के बच्चे हैं, अगर हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी, तो इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से रिसर्च हो जा रहा है यहाँ पे। मतलब ये सब साहित्य वाहित्य यहाँ की बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, हम क्योंकि साइंस है तो हमें तो दिक्कत दिखती है यहाँ पे इस मामले में। ठीक, ओके, ठीक, थैंक यू। हादी हसन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो 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 हसन जी, हेलो 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 हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्ते। मैम, मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है। 2007 में किया हूँ और 10 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। जी मैंने 2014 वाला बीपीएससी इंटरव्यू भी दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि हमारा हाई स्कूल इंटर में थोड़ा परसेंट कम था और शायद इंटरव्यू भी अच्छा तो मैम, जैसे मैं इंटरव्यू तो पैनल में गए थे तो एक चेयरमैन थे, नेता टाइप के थे मेरे बोर्ड में, और बड़ा कैजुअल अप्रोच करके मेरे साथ बिहेव भी किया गया और मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस। उसी समय मुझे लगा कि मुझे होगा नहीं, और थोड़ी सी मेरिट भी कम की वजह से फॉल्ट था। तो मैम, जैसे हर इंटरव्यू में मैं 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ इससे रिलेटेड, और इस समय वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में टीचर हूँ मैम, और 2010 से ही यूपी में सेलेक्ट हो गया था, तब से अभी टीचर ही हूँ, बीएड भी किया था। तो अब जैसे जैसे ये लोग पूछते हैं 2010 से आपने रिसर्च छोड़ दिया और अब 2020-21 चल रहा है, तो आप 11 साल से सर्विस में हो, 60+ सैलरी होगी, यहाँ 70 होगी, तो यहाँ मतलब क्या करने आए? ये मतलब इस तरह का ऐसा डिमोरलाइज करते हैं, टॉपिक पे भी नहीं आते हैं, और देखिए इस एक टाइप बात का। बता दें, ऐसा हर हाँ जगह आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट में पहले से होते हो, गवर्नमेंट जॉब में, उसको अगर हाँ। आप शो करते हो तो पहले से ही सबका दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कि अरे ये तो जॉब में है पहले से। ये चीज हमने भी देखा है। तो मैम, इस समय फॉर्म में तो कहीं फिलअप करने की जगह ही नहीं थी, मतलब इस समय जो फॉर्म भरा गया है उसमें कोई ऑप्शन हम्म। नहीं, आर यू एम्प्लॉयड और नॉट। तो क्या हमको शो करना चाहिए या फिर इसको नहीं शो करना चाहिए और हम फ्रेशर बन के जाएं? हमें तो जिस हिसाब से आप कह रहे हो फिर यही लग रहा है कि आप इसको शो ना करिए सिर्फ, लेकिन आपको लियन या फिर कुछ इस टाइप का लेना पड़ेगा ना, जहाँ से जॉब कर रहे हो, अगर बाई चांस यहाँ लग नहीं, जाता है हम तो। यूपी से हैं, वो बिहार है, कहाँ लियन मिलेगा, और हम बेसिक एजुकेशन में हैं, जूनियर कब हाई स्कूल। मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, कौन कह दिया कि नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ बिहार के जॉब करने के बाद भी मेरा यूपी में जॉब लग गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी हायर एजुकेशन के थ्रू। अच्छा। तो वहाँ पे भी हम काउंसलिंग सब कराया, मैंने ज्वाइनिंग का भी सोचा था लेकिन बाद में नहीं ज्वाइन किया, वो कुछ और रीजन की वजह से। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि आप लियन ले सकते हो अपने वहाँ से, आपका सैलरी भी सिक्योर हो सकता है। खैर ये तो सेम पोस्ट की बात थी, वहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात थी, यहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, तो सैलरी भी सिक्योर हो जाती है। बट आपके केस में क्योंकि पोस्ट अलग अलग है तो इस सैलरी मतलब सिक्योर का तो नहीं हो सकता। उन्होंने यहाँ तक हाँ कहा कि आप वहाँ जूनियर क्लास को पढ़ा रहे हो, वहाँ बॉटनी बायोलॉजी कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या नाम है वो सब भूल गए होगे, कैसे अपने आप को 12 साल तक मेंटेन तो रखे होगे।
फिर आप खुद देखिए ना, वो उससे से कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उसको मत एकदम बताइए वही। फिर कि आप जॉब कर रहे हो। तो इस तरह से बिल्कुल। उन्होंने इतना होपलेस कर और दिया। एक बात और है कि जूनियर में पढ़ाना वो अलग ही सब्जेक्ट होता है, और बीएससी एमएससी का तो जान ही रही है कितना, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है अरे एकदम बॉटनी में अगर मतलब आप हैं अब तो। वहाँ उनके दिमाग में है कि क ख ग घ पढ़ा रहा है और सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर पे आएगा, और लंबा गैप हो गया है, 10-12 साल का गैप हो गया है, भूल गया होगा। तो सब्जेक्ट पे वो लोग आए ही नहीं, मतलब कुछ देर तक रिसर्च पे रहे, उसके बाद जैसा आपने कहा बोर्ड पे खड़ा कर दिया, कोई टॉपिक पढ़ाओ, और 1.5-2 मिनट में अभी हम माहौल बना के टाइटल से लेके आ रहे थे, तो कहा ठीक है ओके आप जाइए। वही बात है, पहले से ही जब बता दो कि हम जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन लोग का मेंटली सोचने का तरीका बदल जाता है, ये चीज तो है। तो चूंकि उस बार तो फॉर्म भरते लगा हुआ था कि आप जॉब में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ इस बार फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन था। तो इस संदर्भ में मैडम मैं जानना चाह रहा हूँ क्या किया जाए। और दूसरी चीज मैम, ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से और बढ़िया किया जाए। जैसे मेरा जो इंडेक्सिंग इस बार बन रहा है 83 आउट ऑफ 100 बन रहा है, जो मेरे हिसाब से है। हाँ हाँ मैम। तो हम लोग एपीआई डिस्कस नहीं कर रहे हैं मिस्टर हसन, ठीक है। वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंटरव्यू टिप्स रिलेटेड है, सो प्लीज मार्क्स और इसके बारे में हम लोग बात ना करें प्लीज। ठीक है सर, ओके। हेलो जी सर। जैसा कि आप यहाँ डॉक्टर केसरी एक क्वेश्चन आया है डायरेक्टली मेरे पास, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि दे आर द लेडी इज डॉक्टर लेडी इज वर्किंग विथ एजुकेशनल सॉरी प्रोजेक्ट कंपनी, ठीक है, एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। आई डोंट नो क्योंकि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्होंने नहीं दिया, इसलिए उस पर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उन्होंने ये दिया है कि शी इज वर्किंग एज ए सोशल ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो सीएसआर एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं कंपनीज में उसको वो टेक केयर करती है, ठीक है। लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर वो शो करेंगी, क्योंकि उनकी सैलरी मोर देन 1 लाख है, ठीक है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी से काफी ज्यादा है अगर हम लोग सैलरी वाइज देखें तो। लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट है जो भी है वो जाना चाहते हैं उसमें, तो वो क्या उस चीज को दिखाएं या ना दिखाएं, पॉइंट नंबर 1। दिखा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो उन्होंने रेज किया है कि अगर वो नहीं दिखाते हैं तो वो प्रोविडेंट फंड और ये सब जो होता है उसके थ्रू तो बाद में पता चल ही जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से वो चीज आप दिखा सकते हैं। और जहां तक कि अगर वो सैलरी की बात करते हैं कि आपका वहाँ 1 लाख है और यहाँ पे इतना, यू कैन से कि टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है, दैट इज वाई मैम। आप सर खुद देख सकते हैं कि हम वहाँ 1 लाख छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरा टीचिंग बैकग्राउंड, मेरा इंटरेस्ट है। अभी तक मैं टीचिंग में जा नहीं पाई थी, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये अपना इंटरेस्ट फोकस करके वो इसको इस तरीके से बता सकती हैं। बट हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि वो छुपाए वहां की बात से, वो ये बता सकती है कि मैं CSIR में काम करती हूँ, बिल्कुल शो कर सकती हैं। क्योंकि प्रोफाइल टोटली डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन उन्होंने शायद दिया है। मैंने एक तरफ आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं तो देखिए, अगर शायद कहीं और टीचिंग करती और अच्छी पोस्ट पे रहती और तब यहाँ आती तो मैं कहती कि हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है। बट वो टीचिंग नहीं है, वो अदर जॉब है, और ये बिल्कुल अदर है। तो वो बता सकती हैं कि क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट छोड़ के यहाँ पर आए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट छोड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट पार्ट ऑफ व्यू में वो बता सकते हैं कि दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस, क्योंकि पॉलिटिकल फिर CSR एक्टिविटीज में कंपनी को लीड करना और फिर पॉलिटिकल साइंस से वापस जाना। अभी उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस से हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस से है वो। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का CSR या सोशल वेलफेयर से कोई एक्चुअली अगर देखा जाए तो नाता रिश्ता उतना होता नहीं है, ठीक है। ज्यादातर CSR में या सोशल वेलफेयर में साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी इनके स्टूडेंट्स जाते हैं, या इनके जो रिसर्चर्स रहते हैं वो जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वेलफेयर, इनका दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि आप काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरह,